Yeah. No. One is Mr. Bharat Bhai. Bharat Bhai trying to for quite some time. She of course a fifth generation Gandhi. So that also is a great qualification for her. And she has actually written this book on eminent women. And that's how she has got more closely associated with us. And now I would give you a little background about this entire exhibition. Sarla Devi is, she was my aunt, and then during her lifetime she kept on drawing pictures, and then there wasn't not much was done about that. Of course, in 1969 there was an exhibition of her pictures in northeast and eastern India, and then also we got some exhibitions at Pune and Vidyanagar and all those places. But then not much was done, so we thought of giving her the publicity and the coverage that she really deserves. So this is our attempt at giving her that publicity and also the exposure, which is very necessary under present circumstances. One more interesting aspect is that it was her dream to actually bring this kind of art and be a part of this such an exhibition always. So in her lifetime she could achieve. We just thought, let's extend that and make it happen as on date. So now I think कला और साहित्य ऐसा हो जो आम लोगों की समझ में आए, बीच में कोई व्यक्ति ना हो जो इसको समझाना पड़े, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और सरलाबेन के चित्रों में वो है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देखते जाए और महसूस करते जाए, अपने दिल में महसूस करते जाए। मेरे एक मेंटर है डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, जापान के हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। द इमोशन जनरेटेड बाय अ वर्क ऑफ आर्ट, बी इट पोएट्री, पेंटिंग और म्यूजिक, may be that tangible, unquestionable feeling of broadening of the self. It's a feeling of fullness, born from a mysterious rhythm, a kind of flight towards the infinite, lived as a sharing, an exchange whose source is our interior world. What we feel inside, how it is manifested, and then how it touches other people. Because the thing that comes from the heart goes straight into the heart of the others. And that's what we feel when we go around this. I was really amazed to see the paintings of Arundhati.
I just couldn't imagine that what could she look like. Or the work of Tanari, two singers from Akbar the Great of his time. I mean, I just felt that how could she imagine what they look like, you know? And not only that, about each one, the way Sonal Bain has written, she has really brought them alive. Sonal Bain's writing on each this, what should I say, नारी प्रतिभा, वाकई वो एक ऐसी कहानी उन्होंने कहानी के रूप में हर एक को समझाया है कि उसका हिंदी में अनुवाद करते वक्त मुझे भी उतना ही आनंद आया जितना सोनल बाई को मुझे वक्त आनंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने भी दिल से लिखा है जो इन चित्रों के साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से they merge into each other and make us really understand the greatness of each person and the person who has created these paintings. So I am really grateful for being a part of this wonderful event, and thank you so very much for inviting me. Thank you. प्रोग्राम इतना अच्छा अपने देश से हो रहा है, कैसा आपको पेंटिंग का कैसा लगा? पेंटिंग से पूरा जैसे कि नारी प्रतिमाएं, बाकी रामायण और थोड़ा अलग से हाथ कृति को थोड़ा अलग से जानिए। रंगों का चयन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आर्टिस्ट उनकी अपनी सोच होती है, पर ये जो रंग विन्यास है वो इतना सौम्य है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है। कई चित्र ऐसे होते हैं जो मतलब ये यथार्थदर्शी चित्र है सब, और यथार्थ होने के साथ साथ सौम्यता जो इसमें भी है उसकी वजह से वो और आकर्षक बने। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी को, इसके लिए किसी को आर्ट क्रिटिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, आम व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाए, पर चित्र वैसे ही होनी चाहिए जो देखते ही आपको अपनी तरफ खींचे, और ये चित्र इसी तरह है। आप तौर पर क्या कहना चाहोगे? न्यू जनरेशन आ रही है, नए आर्ट लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको वो क्या कहना चाहोगे सलाह की पेंटिंग के? आर्टिस्ट भी देखें, मतलब हर तरह के चित्र होते हैं और कला भी आगे बढ़ती जा रही है, नई नई विधियाँ आ रही हैं, नई शैलियाँ आ रही हैं, लोग स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहे करें। लेकिन इन्होंने जो एक अपनी पीढ़ी के लोगों के समक्ष ये रखा, ये ऐसे चित्र है जो अगली पीढ़ियाँ भी उससे बहुत कुछ पाएगी, और ये ज़रूरी है कि हम देखते रहें। वो देखते तब रहेंगे जब इस तरह से प्रदर्शित हो गया, नहीं तो हमें कहाँ ये मौका मिलता है। अगर ऐसी प्रदर्शनी ना होती तो हम कैसे देख पाते? थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। सर आपकी बात मैडम आप बताओ। कि एक तो इनकी जो पर्सनालिटी है, एक ऐसी लेडी जो बहुत शिक्षित और श्रीमंत खानदान में बड़ी हुई है। वो टाइम के जो वाइब्रेशंस देशभक्ति के, फ्रीडम फाइट के, वो सब लेती है, साथ में वैल्यूज़, टेक्निकल वैल्यूज़ सब लेती है, और इसी तरह से डेवलप होती है। फिर इसका आर्ट में ध्यान होना, फिर इसका फ्रीडम फाइट में जाना, जेल में भी जाना, उसके बाद स्वतंत्रता हासिल होने के बाद उनका बॉम्बे से छोटे से गांव में लाइफ टाइम तक सेवा करना, और उनके साथ उनके हस्बैंड का भी जाना। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगता है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी हो, और इन सब के साथ साथ ये इतना डेडिकेशन देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, और साथ में ये कला सर जो सौंदर्य बोध होगा उनके अंदर, वो सब कितनी ग्रेटनेस में होगी, वो कल्पना करते हुए मैं सच में रोमांचित हो जाती हूँ कि कितने सुंदर पर्सनालिटी होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि यही जो इन्होंने कहा कि
उसके परिवार वालों ने ये सब संभाल कर रखा। मैंने देखा है गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके, दूसरे जगह पर भी होगा कि हम लोग एक तो आर्ट के प्रति उदासीन हैं और दूसरा अपने घर वालों में अगर कोई भी टैलेंट हो तो उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ठीक है करके ज़्यादा मोल भाव नहीं देते। ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह। तो यहाँ पर इन लोगों ने 2-3 इंडिया जाने के बाद भी जो इतनी संभाल के सब रखा है, इतनी अच्छी तरह से सब जहाँ भी प्रदर्शनियाँ की है अच्छी तरह से की है। आपने तो ये पहली बार यहाँ पहली बार, लेकिन विद्यानगर में और अलग अलग जगह पे तारक भाई ने वगैरह की। तो ये बात भी और बड़ी अच्छी है कि घर में एक कलाकार का होना और उनको इतना अच्छे से दुनिया के सामने रखना, ये सब विरासत की तरह। सबसे बड़ी विरासत तो यही है। पैसे की वगैरह विरासत भी अच्छी है, लेकिन ये सब जो विरासत है सही माने में उनको इतनी अच्छी तरह से संभाल के और इतनी अच्छी तरह से रखना, एकदम संतुलित। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ग्रेट हैं, ये बहुत ग्रेट, ऐसा नहीं, बिल्कुल संतुलित भाव से और बिल्कुल आदर भाव से सब कुछ रखा हुआ है। और चित्रों के बारे में आर्ट में मेरी इतनी तो समझ नहीं है, लेकिन जैसा कि वर्षा बहन ने कहा कि बिना समझ के भी हम इसको बराबर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वहाँ वो कांगड़ा चली का एक पिक्चर है, उसमें जो ट्रांसपेरेंट उसकी साड़ी दिखाई है लेडी की, यहाँ और चेहरे में भी आप देखिए कि जिस एंगल से है उस तरह से उसके फेस का शेडो है, जिस फेस के जिस हिस्से में ये आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, जहाँ पर शेडो आना चाहिए, और जो सौम्यता है। अब देखिए ये मेरी क्यूरी का चित्र है, उसको कुछ आविष्कार हुआ है तो उसके चेहरे पे ये आश्चर्य है, इतना सुंदर आविष्कार हो गया है। साइंटिस्ट ना हो, शारदा मणि की इतनी शांति है उनके फेस। तो हर एक चित्र में इस तरह से किया और बड़े ही आकर्षक और बड़े ही सौम्य कलर्स से ये सब हुआ है। और वाटर कलर में इतना बारीक काम करना सच में बहुत अभी इतना अच्छे पेंटिंग है, मतलब कितना प्रभावित कर सकती है इसलिए नई नई जनरेशन आ रही है। कि अभी आप सोचते आप भी देखते अपनी वो अपनी जनरेशन का, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं, सबको प्रभावित होनी चाहिए, लोग देख रहे हैं, जिसको उनको भी मालूम होता है किस तरह का वर्क है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए चित्रकला का जो सौंदर्य है, समझ है, उनकी कल्पना शक्ति है, सो तो है ही, पर उसके साथ साथ उन्होंने जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कला का उपयोग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, विज्ञापन देने में भी करते हैं, है ना, लेकिन ये जो विषयों को उन्होंने चुना है उसमें मूल्य दर्शन है, आध्यात्मिकता भी है और अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक प्रयास है जो हमेशा बना रहेगा। ये जो नारियों के चित्र हैं, अतीत में उन्होंने जो काम किया वो आप देख रहे हैं और उस पर फिर सोनल मैन ने लिखा, इतना रिसर्च करके उन्होंने लिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या पता चलता कि ये अरुंधति कौन थी या भावती नाम मैंने पहली बार सुना, वो कौन थी। और मैंने जब इसका हिंदी में अनुवाद किया तो मुझे यही मन में हो रहा था कि ये सरलाबेन ने कैसे सोचा कि वो ऐसी दिखती होगी। हाँ? यानी वो उनकी कल्पना शक्ति है ना, क्योंकि ये कोई रेफरेंस बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा कि वो कैसी दिखती थी। और कभी सास है ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था। शी वॉज वेरी काइंड, आर्टिस्ट तो थी। सर आप कहना चाहोगे अपने शो के बारे में, और शो अभी शो अपनी ऑर्गेनाइज किया, इतनी बुराई सब किया, पेंटिंग आपने लाया है, इसके बारे में कहना चाहोगे? बात यह है कि कुंवर जी ने हमें जो कुछ भी दिया वो औरों को भी हम दें, इस भावना से ये पूरा हमने किया है।
और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ठीक है, मैं आगे चलकर काम कर रहा हूँ, मगर हमारे पीछे हमारे साथ जो पूरी टीम है उसका ये एक्चुअली आपको रिजल्ट देख रहा है। वो टीम पूरे डेडिकेशन से काम करती है। जैसे कि अभी ये किताब का पब्लिकेशन हुआ तो उसमें हमारे गुरु ब्रदर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है और सभी किताबों की प्रिंटिंग वगैरह में उनका काम अच्छा रहता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों अभी धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे, तो लगता है कि नहीं ये चलेगा अभी आगे। ये सबसे बहुत मुझे अच्छा लगता है। इंडिया के नंबर वन गैलरी ब्रांडिंग स्टोर है सर्वोदिका, और आपने सब उसमें आपको कैसा लगा ये सब पेंटिंग देख के इस वाले कैसा मालूम होता है कि वो सबको जाना दिखना चाहिए कैसा? नहीं, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है। ये सब पेंटिंग आपने संभाल के रखी है, इसके पीछे आपका क्या मतलब है या किस तरह का? नहीं, ऐसा था कि ये हमें विरासत में मिला है तो विरासत को संभालना है। अच्छा, विरासत संभालना किसी एक की के लिए बहुत मुश्किल रहता है, तो उसमें जब पूरा परिवार का साथ रहता है तभी ये बात बनती है। अच्छा, ये चित्र इतने साल अलग अलग जगह पे रहे और जिन्होंने भी अभी पूना में हमारी फ्रेंड के पास रहा, फिर अभी हमारे ये मेरे कजिन्स हैं उनके पास रहा और अब हमारे पास आया है, तो हम उसका अच्छी तरह से देखभाल उसकी कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। आगे प्लानिंग क्या है, कहाँ का एजुकेशन आपको करने वाले हो, किस तरह का? अभी देखिए, ये तो पहली बार हम इतने बड़े पैमाने पर कुछ करने की सोच रहे हैं। अभी ऐसा है कि जब इच्छा रहती है और संजोग रहते हैं तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पर अगर लोगों को अच्छा लगे और उन्होंने भी कहें कि नहीं हमारे यहाँ आ जाइए तो हम लेके जाएंगे, जैसे बुआ जी सर्वोदय सम्मेलन में लेके जाती थी, या नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका चलता था। इस तरह से कुछ करते रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बुआ जी ने जो किताब 1969 में 7 भाषाओं में करवाई थी, वो वर्षाबेन और औरों की मदद से हम अब तक 19 भाषा में कर चुके हैं और 10 नई भाषाएं जोड़कर हम उसे न केवल भारत के लिए पर और देशों के लिए भी हम गांधी जी के विचार पहुंचाना चाहते हैं। बस ये हमारा, और ये इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना करते रहेंगे।